today we welcome Chief Smile Officer Mr. Sunny Nagpal to our show Amazing Mentor. In the conversation, we will understand about his designation, Chief Smile Officer, and also discuss his journey from social study teacher to Chief Smile Officer, or say journey to become an entrepreneur. It's a pleasure to welcome Mr. Nagpal to our show Amazing Mentor. Welcome, sir. Thank you so much, sir. Thank you. I'm really glad, charged and enthusiastic to be on your show. Thank you. मेरी अपनी भी क्यूरियोसिटी है वो ये जानना, और क्योंकि ये डेजिग्नेशन भी मैंने पहली बार सुनी है विद चीफ स्माइल ऑफिसर. So we'll start our interview with the concept behind the designation, which says Chief Smile Officer. So tell us about what your designation and role is. Thank you so much, sir. So जब हम स्कूल में होते थे, मेरा एक दोस्त होता था संतोष सुब्रमण्यन. तो उसके आइडियाज बड़े आउट ऑफ द बॉक्स होते थे. अब मैं टॉपर था, मैं सोचता था यार अपने को ऐसे आइडियाज नहीं आते हैं, नो डाउट भगवान की ग्रेस है, लेकिन ऐसे आइडियाज नहीं आते. तो ये सोचते सोचते 2 साल निकाल दिए. 11वीं 12वीं में उसके साथ था मैं. फिर मेरे जीवन में आया मिडना ग्लोबल. इट्स कॉल्ड जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग. तो हम ब्रेन को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये ब्रेन फील कर रहा है तो क्यों कर रहा है, थिंक कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर रहा है तो क्यों कर रहा है. So I met my friend after so many years in 2018, and he was my first customer for genetic brain profiling. So I saw his fingerprints. I saw that he has a reverse loop, out of the box thinking. तो ऐसे लोगों के पास innovation होती है, ऐसे लोगों के पास different ideas होते हैं. So he can come up with Cambridge. Not Cambridge, Cambridge. कौन बनेगा इंग्लिश पति? And his designation is Chief Curiosity Officer. So we founded a company. So he gave me the designation Chief Smile Officer. क्योंकि मेरे से कोई पूछता था नवज्योति में, What is your role? बच्चों को प्यार करना. चिन्मया में क्या करते हैं जी? बच्चों को कहानी सुनाना. So हंसना हंसाना ही आता था. तो वी मेट स्वामी तेजोमयानंद जी ऑफ चिन्मया मिशन. उन्होंने बोला ये तो चीफ लाफ्टर ऑफिसर होना चाहिए. तो हंसना हंसाना ही आता है सर. तो दैट्स हाउ आई वाज गिवन दिस डेजिग्नेशन चीफ स्माइल ऑफिसर. बहुत इंस्पायरिंग डेजिग्नेशन है सर, क्योंकि सबसे बड़ा आजकल खासतौर से पैंडेमिक में और हमेशा यही काम रहा है कि कैसे लोगों को हंसाया जाए और कैसे खुशी बांटी जाए. तो हाउ वाज योर चाइल्डहुड? चाइल्डहुड में भी आप इसी टाइप से जोक मजाक किया करते थे और वाज यू सीरियस? हाँ सर, बहुत बहुत ग्रेस रही है. माय डैड वाज इन दिल्ली एंड फ्रॉम देयर ही हैड अ फैक्ट्री. सो फ्रॉम देयर वी केम टू कोयंबटूर एंड आई वाज ब्लेस्ड विद अ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, a school which had spiritual values. It's world famous Chinmaya Vidyalaya. They have over 300 centers. So वो spiritual values आती गई और extra curricular activities, school activities, so much of energy we had. So ये बहुत बड़ा blessing था कि हम अध्यात्म से जुड़ गए. तो mental development, spiritual development फ्री में होता गया. और तब हमें लगता था कि we are volunteering, we are doing something. लेकिन अब लगता है नहीं. Life was preparing us. Nature was giving us free of cost training by storytelling to kids, by living spirituality, by talking big beliefs. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. Whatever happens, happens for the best. Everything is a prasad, everything is a gift. What you do with what you have is your gift to God. तो ऐसी thought से हम पले बड़े तो बस life बदल गई. So childhood was very spiritual and amazing. And volunteering was ingrained because I was into scouts and this spiritual activities were many. I was taking classes, I was organizing camps, I was the treasurer. So कंजूसी बहुत थी. तो बस सीखते गए सर. तो आजकल if you see the generation, तो अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजियस चीजें फॉलो करना
उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये आ गया कि इट्स ऑल आउटडेटेड, भले दिल में हो बट दे डोंट शो इन पब्लिक दैट वी आर स्पिरिचुअल या वी रिस्पेक्ट एल्डर पीपल. So what do you will advise to such generation who have lost their values? Sir, spirituality is art of living, not the art of dying. It's living छोटी उम्र में. I would say all parents should become spiritual, should live spiritual, because parenting begins before they get married. पहले मेरे में गुण होने चाहिए. So then slowly we start living life rightly. Bhagavad Gita is not to be heard at the deathbed, or any scripture or any spiritual text is not for above 50 or above 60, because you have crossed your life. Now you have to peacefully die, and you will not die because you are holding on. So spirituality is being happy. Spirituality is being healthy. Spirituality is being successful in the truest sense. Spirituality is all-round success. Spirituality is ikigai. Doing what you love, doing as per your swadharma, what you are born with, what your purpose is, doing it effortlessly, doing it with joy, making money also, and serving the society. So spirituality is ikigai. तो चाइल्डहुड में क्या बनना चाहते थे आप? क्योंकि as we progress and you go older and older, हमारी जो चाह है कि हम ये बनना चाहते थे वो चेंज होती रहती है. तो फर्स्ट चाह क्या थी? ये बनना. सर, डॉक्टर के पास जाते थे, तबीयत खराब होती थी तो लगता था डॉक्टर बनेंगे. ट्रैफिक पुलिस को देखते थे तो लगता था ट्रैफिक पुलिस बनेंगे. एंड चेंज केम इन grade 12 or after 12th, when we started, volunteering a lot right from class 9, teaching. So somehow we got a good mentorship in Chinmaya कि पढ़ाने में मजा आ रहा है, और बच्चों के साथ मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ, बड़ों के साथ कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ सर. तो बच्चों के साथ मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ और मजा भी आ रहा है, बच्चे प्यार भी करते हैं. Then there was a leave vacancy in चिन्मया विद्यालय in 2004. So मुझे 6 महीने की एक जॉब मिल गई और मैं सोशल स्टडीज पढ़ाने लगा. Then I discovered, yes, I am born to be a teacher, because I was discussed at home. सनी सर ने आज ये पढ़ाया. पीटीएम में जब पेरेंट्स आते थे जिनको मैं नहीं भी पढ़ाता हूँ, खुसर पुसर होती थी, ये सनी सर है. So that was one big reward, and I cherish this moment. When I used to walk on the stage, parents will already know me. So I have to just tell that you are the best parents and you have the best kids. So slowly I discovered that yes, I was born to be a teacher. But important point is, life may not give you all immediate. So I worked in IBM Daksh. मुझे नाइट शिफ्ट नहीं करनी थी तो भगवान ने मेरे को 4 बजे वाली शिफ्ट दे दी सुबह. घर जल्दी आते थे तो ट्यूशन पढ़ाता था मैं. फिर 1 साल दक्ष में नौकरी की. अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे आया, छुट्टी मिली, इंटरव्यू दिया, भगवान ने फिर टीचर बना दिया फॉर एवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर. और ऐसा भी नहीं था कि टीचर बन गए, लाइफ आसान हो गई. फिर मैं जॉबलेस भी था 9 months और मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई, MBA एजुकेशन मैनेजमेंट. उस जॉबलेस वाले टाइम पे कमाता नहीं था, रिश्ते आते थे. उसके बाद फ्रॉम फिनिशिंग स्कूल जॉब, 5-star job, I landed in the slums. So rags to riches होता है, मेरी लाइफ में riches to rags था. And those 7 golden years came in Navjyoti India Foundation, where I was chosen to serve the children in the slums under the biggest project of Navjyoti India Foundation, a brainchild of Dr. Kiran Bedi. So who is your mentor in life? Very very tough question, because मेंटर के लिए मैं अभी तैयार ही नहीं हुआ कभी जिंदगी में. मैं बोलूंगा जो मेंटर के लिए डिवोशन चाहिए, जो मेंटर के लिए खुला दिल चाहिए, ईगोलेसनेस चाहिए कि हम पोर आउट कर दें. तो एज टीचर्स, एज बॉसेस,
My favorite boss is Miss Neetu Sharma, whom I met in Navjyoti India Foundation. She has taught me a lot. Though I was not a good mentee, she helped me blossom a lot. She gave me freedom, she understood me, she listened to me, she never took any credit. She always pushed us beyond our potential and helping us realize that there is more, there is next level. Then in midnaglobal.com, I met Ratnaswamy sir. Now, they are all mentors, but are we mentees is a very big question. Are we Arjuns? There are Lord Krishnas available, but do we pour out? Or are we like Duryodhana and Dhritarashtra, attached to our own being, our own insecurities, want to look good, want to, show good? So I don't think I have reached that stage where I can call myself a mentee or a Arjun. Yes, there were real amazing bosses who loved me, who helped me progress. So I have named them. And spiritual सत्संग में मेरे को भगवान मिले. वहाँ जो प्यार मिला वो बियॉन्ड वर्ड्स है. वहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन मिला वो बियॉन्ड वर्ड्स है. But I'm on my journey to be a mentee. So tell us about genetic brain mapping, which you have talked in the starting. So what does it Sure. ये हमारा very close to the heart topic है, क्योंकि मम्मी के पेट में between 10th to 24th week, fingerprints and brain are developing simultaneously. So ये एक आपका पेरेंट डॉक्यूमेंट बन गया. उसके ऊपर आप कुछ भी खड़ा कर सकते हो, लेकिन जो लैंड है वो मिल गई और वो सॉइल की क्वालिटी वो बदलेगी नहीं. तो इसको बोलते हैं हम नेचर. उसके बाद नर्चर करता है पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल एनवायरनमेंट या सोसाइटी. लेकिन हम जो अभी बात कर रहे थे कुछ मिनट पहले कि 5 साल डॉक्टर में लगाए, फिर लाइफ चेंज हो गई. 5 साल पायलट में लगाए, लाइफ चेंज हो गई. बिकॉज दे डिड नॉट फाइंड देयर इकिगाई. मिड लाइफ करियर क्राइसिस और स्कूल फेलियर और कॉलेज फेलियर is not child's fault. It's society, parents, teachers who have not understood the child. AHA education में हम believe करते हैं when the flower doesn't blossom, we don't fix the flower, we fix the environment. So AHA education is all about nurturing, decoding the brain with Midna Global. तो उसमें हम decode करते हैं what is your personality, what is your behavior traits. So you may be impatient, you may be कंजूस, fine. इमरजेंसी डॉक्टर को impatient होना चाहिए, तभी जान बचेगी. ICU डॉक्टर को पेशेंस भरा होना चाहिए, ऑपरेशन के बाद इंप्रूवमेंट देखे. नहीं तो वो बोल देगा चलो निकालो इसको, ठीक हो गए हो घर चले जाओ, और घर में आके भी डेथ होती है. So every trait is useful. If you're so patient, become a play school teacher. If you're rule oriented, perfection addict, become a middle school teacher. If you are very smart, competent, ambitious, become a 12th grade teacher, because they need a lot of stuff. And if you are easygoing, inspiring, delegating, become a college teacher, become a mentor. चाहे वो डिस्क प्रोफाइल है, चाहे वो MBTI है, चाहे वो बिहेवियर ट्रेट्स हैं, चाहे वो हॉलैंड थ्योरी है, ये सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट का एक मिश्रण है जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग. ये कहाँ यूज होता है, किसको यूज होता है? 2 साल की उम्र में भी हम ब्रेन डिजाइन डिकोड कर सकते हैं. उसका फायदा, नेचर तो समझ आ गया, नर्चरिंग कैसे करनी है. मेरा बच्चा कहना ही नहीं मानता, मेरी वाइफ तो ऐसी है, सॉरी कभी नहीं बोलती, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अडेप्टिवनेस होती है. तो वो मुझे समझ आ जाती है ब्रेन प्रोफाइलिंग में. सो आई बिकम अ स्मार्ट पेरेंट. फिर मैं उसे पढ़ाना शुरू करता हूँ, स्मार्ट लर्निंग एंड टीचिंग शुरू हो जाती है. फिर स्मार्ट कोचिंग, टू कोच राइट, डोंट गेट इनटू द रॉन्ग स्ट्रीम, रॉन्ग कॉलेज. देन स्मार्ट कोचिंग, देन कम स्मार्ट अर्निंग.
अब मेरे को बोलना बड़ा अच्छा लगता है, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, उसके अगर पैसे भी मिले तो सोने पे सुहागा। टॉपिक भी मैटर करेगा, ऑडियंस भी मैटर करेगी। 1 to 1 or 1 to many depends on my confidence, depends on my competency, depends on my preference. And this comes from different brain lobes. Whether you are comfortable with adults, whether you are comfortable with peers and juniors, whether you are a Hitler kind of a boss, whether you are a flexible, loving, caring, sacrificing, inclusive boss. So ये लीडरशिप स्टाइल्स भी डिटेक्ट करेगा, तो स्मार्ट अर्निंग होगी। अब अर्निंग शुरू हो गई तो स्मार्ट पेयरिंग भी कर लो, शादी भी कर लो। बिकॉज डिवोर्स क्यों होता है? When there is an opinion clash, मैं भी इंडिपेंडेंट, तू भी इंडिपेंडेंट, मैं तो तैयार खड़ी हूं, जाओ भागो, सो भी बोथ ऑफ अस वांट आवर वे, मेरी चलेगी, इसीलिए ये विचार ना मिलने से डिवोर्स होते हैं। तो हमारे जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग में सबका सॉल्यूशन है। एम्प्लॉय ने एचआर का दांत तोड़ दिया, साले ने जीजे को मार दिया, ये सारे जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसिडेंसेस होते हैं, घर में कुछ तोड़फोड़ होती है, तू मैं होती है, ये सब पता चल जाता है। प्लस सॉरी कौन बोलेगा घर में, वो भी पता चल जाता है। बिकॉज ब्रेन का डिजाइन हम डिफॉल्ट ही जी रहे हैं। जो मटेरियल भगवान ने बना के भेजा है वो पर्पस मिल जाए तो सक्सेस, सेटिस्फैक्शन, हेल्थ, वेल्थ, मनी, हार्मनी, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। पीस एंड फीस, सब कुछ मिल जाता है। तो एज यू सेड कि आपको बोलना अच्छा लगता है और बोलने के साथ पैसा मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। So it's like converting your hobbies into your profession. So what were your hobbies in childhood? क्रिकेट खेलते थे पूरा दिन रोड पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं छोड़ते थे, बिकॉज आई एम बॉर्न विद अनलिमिटेड पोटेंशियल एज पर माई ब्रेन प्रोफाइल ऑल्सो। हम बोलते हैं अरे अनलिमिटेड पोटेंशियल, इन्फिनिट पोटेंशियल, करेक्ट, बट few people are comfortable with focus. Few people are comfortable with one task. Master of one. हम master of one नहीं बन पाए क्योंकि हम jack of all हैं। हमें हर जगह भेज दो, हम एक काम टिक के नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने आहा एजुकेशन बना दा, इसलिए भगवान ने मिडना ग्लोबल रखा है, इसलिए भगवान ने हीलिंग डायरी रखा है, इसलिए भगवान ने लिंक्डइन पे द ट्रेनर रखा है, इसलिए भगवान ने सबसे कोलैबोरेशन करने के लिए छोड़ दिया है। सबको जाके खुशी बांटो, सबको स्माइल करा। So these like I used to love to participate in fashion shows and speeches and I tried even singing and I remember गाना भूल गया, फिर मैं ऐसे करके खड़ा हो गया स्टेज पे, सॉरी बोल के आ गया। अब गाना नहीं आता मेरे को, लेकिन पार्टिसिपेट करना है क्योंकि वहां बैठ के क्या करेंगे, बॉडी एनर्जी भी होती है। तो कई बच्चे एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते, दे वांट टू मूव देयर बॉडी, इसीलिए हाथ मार देगा वो कहीं पे या इधर उधर घूमेगा। तो स्कूल में ये सब काम नहीं होता, तो एक बॉडी और एक टॉकिंग, डोंट मूव डोंट टॉक, ये स्कूल में फेवरेट होता है टीचर्स का। और क्योंकि हमारा इंडियन सिस्टम भी ऐसा है, लेक्चर सिस्टम, तो ये ब्रेन प्रोफाइलिंग से तो इतने राज खुल जाते हैं कि हम क्यों एक जगह नहीं बैठे या क्यों हमने एक हॉबी परस्यू नहीं की। तो ये जादू है सर। So tell us about your journey from a social studies teacher to becoming an entrepreneur. बस भगवान ने बनाना था, बन गए, डेस्टिनी थी, बन गए। तो the journey started in 2004 with a salary of 2,000 rupees. I was a social studies teacher and I found that yes, I am loving this because children love me and I can interact. I will not be a one-way teacher. I will ask questions. I can draw on the board. Then after that came a period. घर वाले बोलते थे टॉपर है लड़का, 96% लाया है, 2,000 कमा रहा है, पागल है हमारा बच्चा। दूसरों के मम्मी पापा बोलते थे वाओ टीचर, नोबल प्रोफेशन। हमारे घर वालों को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने हमें पैक किया, दिल्ली भेज दिया। दीदी को भी पसंद नहीं था कि क्या कमा रहा है लड़का, तो दिल्ली आए तो फिर नौकरी ढूंढी, IBM दक्ष पहुंच गए, कॉल सेंटर में काम किया, वो था बैक ऑफिस
क्योंकि अंग्रेजी में फिलर्स होते थे हमारे, तो वॉइस में तो कभी सेलेक्ट हुए नहीं। तो बैक ऑफिस में थे, 8,000 तनख्वाह थी, 8,500 वहां पे फेमस हो गए हंसने के लिए और बातों करने के लिए। उसके बाद कुछ अवार्ड्स वगैरह जीते, न्यू हायर ट्रेनिंग एंड ऑल। देन आई जॉइन प्रिया वॉरिक फिनिशिंग स्कूल, वहां पे भी टीचिंग थी, स्कूल्स में जाते थे, DPSS, APJ, फोक एंड नाइफ, एटिकेट, बर्थडे पार्टी, दिस दैट। तो अमीरों के साथ काम किया। उसमें था जैसे कुछ बच्चे पैम्पर्ड होते हैं, मैं ये वाला पिज्जा नहीं खाऊंगा, वो वाला पिज्जा नहीं खाऊंगा। हम थोड़े सिंपल बैकग्राउंड से थे। तो पॉवर्टी इज द बेस्ट MBA, दैट वाज वन लेसन, एंड पॉवर्टी लर्न हेल्प्स अस एडजस्ट अ लॉट। तो हमने वहां पे उन बच्चों को प्यार किया, उनको बोला चलो मिलके खाते हैं, लाइक दैट, लाइक दिस। सो वी फेस न्यू चैलेंजेस देयर, एंड देन केम अ पीरियड where I thought I will do something on my own. My boss is earning so much, will I not get entry in one school? I never got an entry in school for money. उन्होंने फ्री में बुलाया, वर्कशॉप कर लो, दिल्ली में था और अकल भी नहीं थी, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तो स्टार्ट किया लेकिन फेल हो गए। 9 महीने में डिग्री हो गई और 9 महीने में सत्संग मिला और सत्संग से प्यार हो गया, भगवान से प्यार हो गया कि काले बाल में जितनी प्रॉब्लम आ जाए कुछ नहीं होता, फेस करो, बुढ़ापे में जब आएगी तो एक्सपीरियंस होगा तो वाइज बन जाएंगे। तो 2009 में फिर नवज्योति मिल गई। नवज्योति चेंज्ड माय लाइफ। सो देयर किरण मैम सेड गिविंग इज लाइफ। हम 25 साल के थे, हमें लगा ऐसे कैसे, मैम के पास गाड़ी है, बंगला है, ड्राइवर है, तो हमें तो सब कुछ बनाना है, अभी शादी भी नहीं हुई है, तो नोट कमाने हैं। लेकिन 7 साल में हमने ये देखा, पैसा डज नॉट गिव हैप्पीनेस। स्लम में बच्चे हमसे ज्यादा खुश थे, पॉजिटिव थे, बड़े दिल वाले थे, गिविंग थे। फिर मैम की कुछ बुक्स पढ़ी, मैम की लाइफ देखी, मैम के साथ ट्रैवल किया, अब्रॉड गए टू मीट NRIs, वो भी पैसा देते थे और वो हमें बड़ी इज्जत देते थे। सनी, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, यू ओनली गिविंग मनी। तो ये सब क्या दर्शा रहा था कि उन अमीरों के पास भी कुछ कमी थी, इन स्पाइट ऑफ द मनी। तो हम तो ऐश कर रहे थे, गिविंग गिविंग, मस्ती, किड्स, एवरी मोमेंट वाज जॉय। मेरे IT के दोस्त मेरे से 4 गुना 5 गुना कमा रहे थे, वो भी बोलते थे सनी यू आर इन सच अ नोबल प्रोफेशन। हमें पता है भाई तनख्वाह क्या है। तो तनख्वाह नेवर मैटर्ड, द अमाउंट ऑफ लव एंड द अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी रिसीव। See, Navjyoti is a great organization, is a learning organization where you become skilled, where you become very, very spiritual. We had training by Isha Foundation, we had training by Vipassana, we had training by Art of Living, we had training by Brahma Kumaris, because Kiran ma'am wants us to transform. Transformation is everything. So चिन्मय भी यही बोलता था कि चिन्मय भी ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, आई ट्रांसफॉर्म, नेशन ट्रांसफॉर्म्स। तो वहां से 2016 में नवज्योति छूट गई और मुझे कोयम्बटूर शिफ्ट होना पड़ा। कोयम्बटूर शिफ्ट हुए तो भगवान ने चिन्मय आश्रम बुला लिया। वहां पे वी वर मैनेजिंग 100 schools. सो वहां पे भी बहुत एंजॉय किया 2 साल। तो जब वहां से निकले तो ब्रेन प्रोफाइलिंग मिल गई। ब्रेन प्रोफाइलिंग वाज हेवन एंड life took off. I was volunteering in Chinmaya and I was introducing a chief guest. I was the MC. So वहां पे भी कुछ चेंज आया। I was invited as a guest in their school annual day पे, और वहां पे मैं वॉलंटियर करता था स्टोरी टेलिंग चिन्मय के थ्रू। वहां पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला और भगवान ने पैसे भी दिए। फिर दोस्त मिला एक दिन, संतोष सुब्रमण्यम, उसने बोला कुछ करते हैं, तूने नवज्योति में काम किया है, बच्चों के साथ एक्सपीरियंस है, मैंने क्रिसलिस में काम किया है, इनोवेशन हेड, बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कम्स टू हिम जस्ट लाइक दिस। सो ही सेड लेट्स डिजाइन आहा एक्सपीरियंसेस। आहा एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, स्कूल लीडर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, किड्स,
So I took up kids and non-teaching staff. He took up all the intelligent things because he's intelligent. He's gone to Finland, taking delegations, teaching pedagogies and all. So he moved on, taking care of Chief Curiosity Officer. I became Chief Smile Officer. Then Bhagwan just did not leave our hand. We got investor in the second year and we got very good collaborations because अकेले काम नहीं करना चाहिए. जो जिसकी स्ट्रेंथ है, हर जगह नहीं पांव फैलाना. जब पता है कि अब हम सिर्फ बातें कर सकते हैं तो बातें करो भैया. तो भगवान sent a very very good partnership with investor, very good partnership with a play school chain. So now we are on a mission of stop teaching, start transforming. We have a teacher training program where we teach 5 transformative habits for teachers so that students transform and students are life ready, not just exam ready. And now we want to empower all the women sitting at home. We want to give them second income so that they are nurturing their children. They're nurturing their little kids. So the journey is amazing and we are blessed, chosen ones, useful tools of the Lord. And the Lord is driving us. The Lord drives us every day. Life is a miracle series. What's the thought behind the name AHA Education? आहा यानी खुशी, आहा यानी वो न्यूटन जब उसने कुछ आविष्कार किया, वो एडिसन जब उसका बल्ब जला, दैट्स आहा मोमेंट, यूरेका मोमेंट. सो लाइफ ना हाई हाई नहीं होनी चाहिए, आहा होनी चाहिए, वाह वाह होनी चाहिए. सो दैट्स हाउ आहा, टू मेक एजुकेशन आहा, टू मेक लाइफ आहा, लाइफ एज अ फेस्टिवल, नॉट वन डे हैप्पी बर्थडे, इट्स हैप्पी एवरी डे. तो जैसे लव एट फर्स्ट नाइट होता है, तो वाज इट दैट स्टिंग व्हिच यू टोल्ड कि ओके ठीक है यही नाम होना चाहिए, या नाम पे पहले कुछ डिस्कशन हुआ था एंड देन यू फाइनलाइज द नेम आहा? सर मेरा सिंपल सा फंडा है, आई एम वेरी पॉजिटिव, एप्रिशिएटिव. तो मेरे को आप कोई भी आइडिया दोगे ना, मैं बोलूंगा वाओ ये कैसे वर्क करेगा, बिकॉज एक थिंकिंग होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग. तो मेरे ब्रेन ऐसे ही काम करता है, डाइवर्जेंट. ओके, हाउ वी कैन प्रमोट दिस आइडिया, हाउ वी कैन मेक दिस आइडिया बेटर. तो मैं वही करूंगा, मैं बोलूंगा वाओ. मैं नहीं बोलूंगा नहीं बेकार है आइडिया, नहीं चलेगा. हाँ, इफ फिनेंशियली लॉस लग रहा होगा, कुछ स्टूपिड डिसीजन लग रहा होगा, वो एनालाइज कर लूंगा मैं. लेकिन अदरवाइज आई एम नॉट अ कन्वर्जेंट थिंकर. थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लोग मुझे समझे कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ ब्रेन के मामले में. See, convergent thinker means getting into details. Convergent thinker means seeing the root cause. Divergent thinking means seeing solutions, helping, broader view, whole picture. So whole picture में तो कोई आइडिया बुरा नहीं है, और भगवान ने मेरे को ऑप्टिमिज्म बनाया है, ऑप्टिमिस्टिक बनाया है, तो मैं कर लेता हूँ कि कैसे ये बढ़िया है, कैसे ये काम करेगा और कैसे ये बढ़िया है. So you also founded Healing Diaries. So what was the thought behind starting Healing Diaries? अमेजिंग मेंटर्स शुरू हुआ पैंडेमिक में. वैसे ही पैंडेमिक में मेरे को भगवान ने दिए 300+ videos which was to just spread happiness, spread smiles. And also भगवान ने दिया the art of writing. एक एडिटर भी मिली, मिस राजेश्री जोशी, जो मुझसे फॉलो अप करती थी. लिखा लिखा लिखा, तो लिखते लिखते 5 बुक्स लिख दी. लिखी तो दिल हल्का हुआ और मन में आया हाँ यार लिख भी सकते हैं. तो राइटिंग हील्स. फिर एक फ्रेंड का फोन आया, मिस सोना से रावत. उसने बोला कुछ करना चाहिए, शी इज अ ग्रेट राइटर. सो हीलिंग डायरी वाज फॉर्म ओनली टू ग्रूम aspiring writers. And if you are just a beginner, when you keep writing consistently, you will become better at it. And when you write, you heal, you empty yourself, you convert mess into message, pain into glory. So ऐसे healing diary बन गई. And we recently had a program with EduDrone, a great company in Pune run by Miss Kajal Chatija. We collected 108 people to write their journey in 2020, inspiring lessons and blessings in 2020.
So that book will be launched in January. So that's how Healing Diary is healing people, and we are celebrating. Best of luck for your launch of the book. Any heart-touching moment in your life? स्पिरिचुअल मोमेंट्स बहुत है सर, भगवान की याद और हर पल ग्रैटिट्यूड में रहना, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज नॉट पार्ट टाइम थिंग लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस इंटरव्यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी आई गेट. नो, ग्रैटिट्यूड तो एक फीलिंग है बस, हर सांस में चलना चाहिए एंड यू हैव नो बिजनेस टू कंप्लेन. सो मैंने भी ऐसे ही मैम से पूछा, किरण मैम से, मैम विच इज योर हैप्पीएस्ट मोमेंट. तो मैं सोच रहा था मैम बोलेंगे मुझे ये अवार्ड मिला था तो मुझे खुशी हुई थी, ये अवार्ड मिला था तो खुशी हुई थी. मैम ने कहा नो, सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड लाफिंग. तो मैसेज यही था, हर पल खुशी का पल है, हर पल जादू पल है, हर पल हार्ट टचिंग पल है. सिंपल एंड इजी, लाइफ मेड इजी. तो हर पल खुशी बांट के कैसा लगता है? सर वही लाइफ है. अगर आप मेरे से मेरी खुशी का कारण बोलोगे, मैं बोलूंगा बीइंग यूजफुल ऑन द प्लैनेट एवरी डे. वीडियो बना रहे हैं हम अपनी खुशी के लिए, लेकिन बाई प्रोडक्ट में कोई ना कोई रोज बोल देगा दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर टुडे, आई लाइक योर वीडियोस. सो मतलब क्या है, हम यूजफुल बन रहे हैं. फिर कोई ना कोई फोन कॉल आ जाएगा. अगर मैं कुछ पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो सामने वाले के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को ही कुछ रिवायरिंग हो रही है ब्रेन में, जैसे एक्टिव पैसिव ब्रेन के बारे में बात हो रही थी. तो ये होता है सर जादू. आप यूजफुल रहो, आप सेल्फलेस रहो, देने वाले बनो. किरण मैम बोलते हैं कि भगवान ने अगर आपको कुछ दिया है तो उसका एक मायना होता है, उसको मल्टीप्लाई करके बांटो उसको जिसको भगवान ने पूरा नहीं दिया. सो शी इज टॉकिंग अबाउट द अंडर प्रिविलेज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नवज्योति. सो खुशी बांटो, यही काम है रोज का. एंटरप्रेन्योर की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. आपकी लाइफ में भी चैलेंजेस आए होंगे जब आपने चालू की. तो व्हाट वर दोस चैलेंजेस और कैसे कॉप अप किया आपने उन चैलेंजेस? जादू है सर लाइफ. किरण मैम का आंसर याद आ रहा है मेरे को. उनसे किसी ने पूछा हाउ डू यू फेस चैलेंजेस, तो मैंने कहा चैलेंजेस, देयर आर नो चैलेंजेस, देयर आर ओनली अपॉर्चुनिटीज. चाहिए रटा हुआ डायलॉग लग रहा होगा, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि लाइफ इज ओनली ट्रेनिंग अस, लाइफ इज ओनली प्रिपेयरिंग अस. एंड इफ यू नो रेज आवर कॉलर एंड से हे गाइस आई एम स्पिरिचुअल, तो भगवान इक्वानिमिटी चेक नहीं करेंगे, ईगो चेक नहीं करेंगे, और ट्रेन करेंगे कि आप और शाइन करो, ग्लो करो. तो चैलेंजेस तो आते रहेंगे सर. इट कुड बी फाइनेंशियल चैलेंजेस, रिलेशनशिप चैलेंजेस, और मन बोलेगा छोड़ यार ये आहा वाहा अपने बस की नहीं है, नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे, तो लगे रहो. एंटरप्रेन्योर का तो काम ही यही है, लगे रहो बस. बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस देते हैं लोग, ग्रिट, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, रेजिलियंस. तो हमारे एक सेंदिल साहब हैं, डॉक्टर सेंदिल कुमरन, चीफ कन्फ्लुएंसर ऑफ TLC. तो वो बोलते हैं लगे रहो हर बात. हर रोज उनका एक मैसेज आता है, वो बोलते हैं लगे रहो. तो यही मंत्र है सर, और कोई बड़ी थियरी फॉलो करने की जरूरत नहीं है. और विश्वास ये रखना चाहिए कि जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है. लाइफ इज प्रिपेयरिंग मी, एंड a person without challenges, a person with challenges, who will be wiser, who will be stronger, who will have a strong mind, who will have a trained mind. ये आंसर हमें ढूंढना है. चाहे आंसर ऑब्वियस भी है, क्या मैं मानता हूं इस बात को. फिर लाइफ का एक और सिंपल फंडा है सर, नाराज नहीं होना. रेफ्यूज टू बी मिजरेबल. अनुभवानंद जी, ही इज अ बी हैप्पी स्वामी. यू कैन सी हिज यूट्यूब्स. He only says one mantra, be happy. और कुछ नहीं है सर. ये चैलेंजेस, आप किसको चैलेंजेस बोलते हो? ये देखो, हम बोलते हैं दुख है, चैलेंज है. जो आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, यू कॉल इट चैलेंज. सो हमारी छोटी बुद्धि है, हम समझ नहीं पा रहे हैं. वो लेसन है, वो प्रसाद है, वो फ्री की ट्रेनिंग है, वो आपका रियल पोटेंशियल बाहर ला रहा है. Oprah Winfrey ma'am says, there are no failures. It is only redirection, new direction. तो बस. तो लगे रहो, जैसे आपने बोला, जब भी चैलेंज आए लगे रहो.
So what is that motivation behind Lage Raho? Being useful on the planet, spread happiness. If we have a goal in life, then that will always win. And if you really love God, one mother, 5 feet, with her desires, with her, mortal body, physical body, she becomes old, she cares so much. Will immortal Lord, infinite Lord not care for us? Who is taking care of entire cosmos, universe? इतने बड़े यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम इतना छोटा, उसमें अर्थ इतनी छोटी, अर्थ में इंडिया इतना छोटा, ये छोटा 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 करते फिर क्या है छोटी छोटी बातें लेके चूं चाहे पूं पे, है ना? स्पिरिचुअलिटी आल्सो सेज एवरीथिंग इज अ ड्रीम. सो बस ये बी अ रोल मॉडल so that others get inspired by seeing you. As simple as that. Your own son, your own daughters, your own friends. So we have no right to be miserable. Also, Vivekanand ji says don't spread the disease of misery when you are upset. Lock yourself in your room. Don't go out and spread the disease. So you are a role model. Since you started your career, you have been into a profession which is transforming life, whether it's teacher or what you are doing right now. So how do you feel and what all comments you get from people whose life you have transformed? Sir, role model का तो पता नहीं, हम मस्ती में जी रहे हैं, ये बात सच है. और comments and blessings वो हमें useful बनाती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं और रोज भगवान की सेवा में रहते हैं. Bhagwan soldier will not fall sick. Bhagwan soldier will always be ready. Wherever he is only smiling and spreading smiles. So blessings तो बहुत हैं सर. सबका 1-2 बच्चा होता है. हमारे यार नवज्योति में हजारों बच्चे हैं. सबकी खुशी हमारी खुशी है. नवज्योति में जब थे, Muslim girls used to get married very fast in the slums. And there will be 9th standard ही होगा उनका maximum education. तो एक टाइम था जब साइंस ग्रुप लेना ही बहुत बड़ी बात होती. आज हमारी मुस्लिम गर्ल्स इंजीनियर हैं. तो आई एम वेरी प्राउड टू से दैट. एंड देन हमारी बच्ची जिसकी शादी होने वाली थी, क्योंकि स्लम्स में लड़कियां भगा भी जाते हैं, वो लड़की को थोड़ा पैसा दिखा, वो भाग गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हमने देखा कि एक घर में जाके हमने शादी रुकवाई. उसके अगले दिन लड़का देखने आने वाला था, तो वो आज बैंकर है. उसका पूरा परिवार ट्रांसफॉर्म हो गया. तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं. सो लाइफ इज हेवन एंड हेवन एंड हेवन ओनली. एंड वी कैन गो ऑन. अभी एक ट्रेनिंग ले रहे थे, मस्ती कर रहे थे नवज्योति के साथ. वहाँ पे इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं बोली जाती स्लम्स में. वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत कम होता है. तो बच्ची ने बोला आज की ट्रेनिंग सक्सेसफुल हुई. मैंने कहा सक्सेसफुल कैसे? तुम्हें तो एजेंडा नहीं पता, मैं तो मस्ती करने आया था. ये वर्ड कैसे यूजफुल बोला आपने? फिर बच्ची बोली आज का मिशन सक्सेसफुल हो गया ना सर. अब मैंने बोला ये मिशन कहाँ से आ गया? देन शी सेड कल्पना चावला जी मिशन में गए थे ना, उनका मिशन फेल हो गया था. सो शी हैड सो मच टू शेयर एंड शी वाज ओनली इन क्लास 6. फॉर अ स्लम चाइल्ड टू टॉक ऑल दिस बिग वर्ड्स फॉर अ सिंपल मस्ती ट्रेनिंग, इट वाज वेरी बिग थिंग. सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं सर, और ये रोज होते हैं. तो इंसिडेंट्स के साथ अभी तक जर्नी ऑफ लाइफ में क्या क्या सीखने को मिला? Life is about giving and giving and giving. Life is about being happy. Life is about being strong. विवेकानंद जी बोले strength is life, weakness is death. विवेकानंद जी और भी बोले they alone live who live for others. Others are more dead than alive. फिर विवेकानंद जी ये भी बोले he is not an atheist who does not believe in God. He is a पक्का atheist who does not believe in himself. फिर ओपरा विनफ्री मैम भी बोली you don't get what you want, you get what you believe in. So बस लगे रहो मुन्ना भाई. आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद किसी टीचर को या किसी पेरेंट्स को क्या क्या सर्विसेज मिल सकती है? आहा एजुकेशन इज अ कंप्लीट पैकेज. छोटे बच्चे से लेके बड़ा तक, B2C भी आ सकता है, B2B भी आ सकता है. बच्चे आएंगे तो उनको लाइफ स्किल्स प्रोग्राम्स मिलेंगे. हमारी एक सिस्टर कंपनी है skadush.com, तो उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मिलती हैं. बच्चे आजकल नेटफ्लिक्स में बिजी हैं, तो skadush.com एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का नेटफ्लिक्स है.
ताकि उनको बहुत कुछ सीखने को मिले, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट स्किल्स। फिर आहा एजुकेशन इज अ B2B कंपनी, सो वी वर्क विद स्कूल्स एज एन इनोवेटिव ट्रेनिंग पार्टनर। किसी को भी कोई भी इनोवेटिव आहा एडमिशंस कराना है तो वो सर्विसेज मिलेंगी, आहा टीचर ट्रेनिंग करानी है तो वो सर्विसेज मिलेंगी। फिर स्टूडेंट प्रोग्राम्स बहुत है, फ्रॉम डे कैंप टू नाइट कैंप टू टाइम टेबल मॉडल, life skills to transformation programs to early leadership, and of course genetic brain profiling, which is applicable for all the families, teaching or non-teaching staff, even to utilize the potential fully of your staff। कौन jack of all है, कौन focused है, ये भी पता लगा लिया ना तो life beautiful। उसके बाद कौन indoor है, कौन outdoor है, कौन people's person है, कौन सोलो पर्सन, ये सब भी सर्विसेज हम देते हैं ताकि सबको करियर में भी मदद मिले। फिर जो लेटेस्ट इनिशिएटिव है आहा का वो है प्ले स्कूल चेन्स, मदर ट्रेनिंग्स, होम स्कूलिंग प्रोग्राम्स। तो ये सब हमारी सेवाएं सबके लिए खुली है ऑल ओवर इंडिया, एंड विद टेक्नोलॉजी वी कैन डू पैन इंडिया सर्विसेज एट द मिनिमम प्राइस। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ आहा, it is not a commercial venture कि हमें सिर्फ पैसा चाहिए। We ran a free online summer camp in the pandemic and we announced on the last day Guru Dakshina model and भगवान gave us a lot। तो ये विश्वास गुरु दक्षिणा मॉडल पे भी हम चलाते हैं और ये पॉसिबल है। हम बोलते हैं ना कॉस्ट कैसे कवर होगा, हमें पैसे नहीं चाहिए थे, हमें सिर्फ जूम के पैसे निकालने थे क्योंकि हमने मेंबरशिप बढ़ा ली थी, जूम वेबिनार जो भी होता है। दोस्त ने बोला हमें जूम का पैसा भी आ गया ना तो हम सक्सेसफुल थे, और वो आया, भगवान ने फालतू किया। तो आहा एजुकेशन की फिलॉसफी यही है, स्कूल का ब्रांड हो, स्कूल का नाम हो, आप इंडिपेंडेंटली सक्सेसफुल बन जाओ और अपनी जिंदगी आहा बना लो बस। तो आजकल बच्चों पे एक तो पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, इट्स लाइक 99.99% बच्चे लेके आ रहे हैं, और हमारे टाइम पे अगर हम बात करें तो 63-72% आते तो हम लोग बोलते वाह इतने सारे मार्क्स आ गए। और ये भी दिमाग में रहता था कि जब हम एग्जाम लिखते हैं तो हम तो 100% का एग्जाम लिखते हैं, पर वो नंबर कम आ जाते हैं, वो पता नहीं कैसे हो जाता है। या किसी जब भी पेरेंट्स कोई पूछता था कितने नंबर का एग्जाम लिख के आए, तो बच्चों का आंसर यही रहता था भाई हम तो 100% का एग्जाम लिख के आए। और जो प्रेशर एग्जाम के टाइम पे, बल्कि अगर आप देखो तो एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल प्रेशर नहीं हुआ करता था बच्चों पे, बाकी टाइम पढ़ो। और आजकल बहुत ज्यादा प्रेशर है बच्चों पे, इसी वजह से बच्चे डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। सो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, हाउ टू टैकल विद देयर चिल्ड्रन, एंड हाउ कैन चिल्ड्रन बी एक्चुअल हैप्पी इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग मोबाइल्स और जस्ट प्लेइंग इंडोर एक्टिविटीज? मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग कराओ, अगर पास में कोई है तो, नहीं है तो भी स्कैनर लेके हमें कांटेक्ट करो, हम करा देंगे आपका। उसके पीछे कारण है, पर्सनैलिटी समझ आ गई ना। आई हैव सीन CA पास करके CA प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्यों? वो फाइल्स के साथ काम करने के लिए नहीं बनी थी, वो प्रेम के लिए बनी थी, वो सेवा के लिए बनी थी। और अगर मोबाइल देख रहा है बच्चा, अगर उसकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है तो कोडिंग में डालो, अगर वो फीलर है तो कोडिंग में मत डालो। बाकी रहा मार्क्स का, मार्क्स इज जस्ट 1/2 ऑफ द मूवी, पिक्चर अभी बाकी है। IQ is tested in the first 20 years, classroom it's only IQ, soul of runner। तू पढ़ के कितना वॉमिट करता है, लॉजिक और वर्ड इंटेलिजेंस बोलते हैं हम इसको, क्योंकि वर्ड से तुम पेपर भर रहे हो, लॉजिक से तुम आंसर कर रहे हो, गणित और साइंस। बट EQ इज द नेक्स्ट स्टेप, फैमिली चलाने के लिए और मिलके काम करने के लिए, वो है सेल्फ इंटेलिजेंस एंड पीपल इंटेलिजेंस। इमोशनल कोशेंट बढ़ाओ, वो नहीं बढ़ा रहे हैं हम एज पेरेंट्स, ना प्यार से हम बात करते हैं, ना अच्छे रोल मॉडल हैं, क्योंकि हम खुद मोबाइल में एडिक्टेड है। दैट इज वन प्रॉब्लम। नेक्स्ट, एडवर्सिटी कोशेंट, बॉडी स्मार्ट प्लस नेचर स्मार्ट। कैन आई फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ? चाहे मैं फीलर हूं चाहे मैं थिंकर हूं, दोनों की लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। Am I prepared with faith in God or in faith in mentor or faith in a closed one, trusted one?
तो एडवर्सिटी क्वोशिएंट बढ़ाओ। उसके बाद ये सब एग्जीक्यूटिव से लेके मैनेजर बोला मैंने, जनरल मैनेजर बोला, सीईओ, रियल लीडर बनाना है तो चाहिए क्रिएटिविटी क्वोशिएंट, म्यूजिक इंटेलिजेंस, पिक्चर इंटेलिजेंस। म्यूजिक इज हार्मनी स्मार्ट, sustaining relationships. EQ will only maintain relationships with prem, dar, samaj. But solving people problems comes from music. The right word to use, the right timing, and so on. Picture smart is solving work problems, being a visionary, having visual sense. वो भी डेवलप हो जाएगी, लेकिन मेहनत से। कब, कौन सी उम्र में? 2 साल की उम्र में। सो मार्क्स इज ओनली IQ. वेयर इज EQ? वेयर इज AQ? वेयर इज CQ? क्रिएटिविटी क्वोशिएंट. एंड ऑन टॉप, beyond everything, beyond all the challenges, to face ups and downs of life with equanimity, to digest success, you need SQ, spiritual quotient. To digest money, wealth, you need SQ. To be balanced in the times of corona, to be selfless, to make a difference, to create a legacy, you need SQ, spiritual quotient. तो मार्क्स की तो बात ही छोड़ दो सर. And I will tell you, there are so many studies done. Toppers suicide, last benchers become CEOs, last benchers become entrepreneurs, last benchers become strong people, last benchers become marketers, because they have Jhello-fied everyone, they can Bhido-fy with anyone and everyone. तो वो क्वालिटीज सेकेंड हाफ में काम आती है, इसलिए वो शाइन करते हैं. आपका टॉपर डॉक्टर बन जाएगा, डॉक्टर गुलशन, डॉक्टर सनी नागपाल, बट कहीं ना कहीं वो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है with his own concepts, with his own solopreneur thing, with investigative brain, not with enterprising, persuading, influencing brain. So it's like basically 3 Idiot. जो रट्टू था वो रट्टू ही रहा, और जो वो आगे निकल के आखिरी में उसको उसी के बाद जाना पड़ा. तो नए एंटरप्रेन्योर को क्या एडवाइस रहेगी, कैसे कॉप अप करें अपने चैलेंजेस को और कैसे अपने कैरियर की शुरुआत करें? सबको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना चाहिए. ये दुनिया एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स बेचने के चक्कर में सबको एंटरप्रेन्योर बना रही है. नेचुरल एंटरप्रेन्योर वो होता है कि गौरव साहब ने 5 लाख दिए, 95 लाख का लोन ले लूं मैं. उतना दम, उतनी एडवर्सिटी क्वोशिएंट, उतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो मैं एंटरप्रेन्योर मटेरियल हूं. अगर मैं बोलता हूं भैया 5 लाख FD में डालता हूं, आधा आधा कर लेते हैं इंटरेस्ट, तो मैं एंटरप्रेन्योर मटेरियल नहीं हूं. This is the simplest test. What is your risk-taking ability? What is your daringness? Because all businesses will not pick up in the first year. All businesses will not give revenue in the first year. All businesses will not break even in 3 years. And entrepreneur means the higher level intelligences which I spoke about. EQ, AQ, CQ, SQ. It is not about IQ. Just because you are intelligent with marks, concepts, you are not an entrepreneur. इसलिए personality test बहुत जरूरी है. इसलिए mentors बहुत जरूरी है. कंपनी आप सीख लो ना, जरूरी थोड़ी है सबको लीडर बनना है. खुश रहना इंपॉर्टेंट है, हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग रहना इंपॉर्टेंट है, होल ब्रेन हार्मनी इंपॉर्टेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग इंपॉर्टेंट है. हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए सबको एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है. तो कोई चेकलिस्ट है जो आप फॉलो करते हो? बस खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो. और रोज यूजफुल बनना है सर. ये पार्ट टाइम काम नहीं है कि मैं बोलूं. अभी ईमानदारी की बात करती हैं किरण मैम बोलती हैं ईमानदारी वाज नॉट वन टाइम, इट इज योर बिहेवियर, इट इज योर ब्लड, एवरीडे जॉब, इंटेग्रिटी, एथिक्स, ऑनेस्टी. सो चेकलिस्ट रोज की होनी चाहिए कि मैं रोज यूजफुल बनूं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो एम्प्लॉई है. कंपनी मेरी है, मुझे रोज यूजफुल बनना है, मुझे रोज कंट्रीब्यूट करना है. कंट्रीब्यूट इज द वर्ड वी शुड पिक अप, बिकॉज
पावरफुल इमोशंस बाय टोनी रॉबिन्स में बोला है, कंट्रीब्यूशन वही खुशी देता है, सेल्फिशनेस खुशी नहीं देती है। मी 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 कल भी एक सेशन था, उसमें यही बोला, इफ यू आर सक्सेसफुल आई एम सक्सेसफुल। हम उल्टा करते हैं, इफ आई एम सक्सेसफुल देन यू आर सक्सेसफुल। नो, पहले सामने वाले की सक्सेस, अपनी सक्सेस तो आ ही जाएगी। तो वन लाइन में कैसे डिफाइन करोगे आप अपने? Look happy, be happy. That was the expected answer from you. So thank you very much, sir, to giving me your time and your precious time, and to come on our show. It was a pleasure talking to you, sir. Thank you so much, Gaurav ji. Thank you. Thanks, sir. Thank you so much.